And this was in the past, and I'm safe right now, even though I'm still suffering from the effects of what happened to me. But I'm not in that trafficking situation right now. Or I don't even know where my trafficker is. I haven't talked to them for 5 years, for 10 years. Or I don't know when the last time was that they texted me. That is okay. It is still acceptable to prepare a report, send the report to law enforcement, and file a T visa and be approved for a T visa, even if the person is not currently being trafficked. They are not in contact with their trafficker. They haven't received a threat from the trafficker or any correspondence from the trafficker for years. They don't even know where the trafficker is. They haven't interacted with the trafficker for many years. They're no longer in control of that trafficker. They've been able to escape and start a new life. None of those things are going to be harmful to the T visa application as a whole. सो टी वीजा में क्वालिफाई करने के लिए जो टी वीजा स्टैंडर्ड्स हैं या जो टी वीजा के मानक हैं, उनके हिसाब से ऐसी बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि अभी आपके साथ जो हो रहा हो वो तुरंत हो रहा हो। मतलब जब हमारे पास आप आए हैं उस समय सिचुएशन चल रही हो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आपके साथ, जैसा कि आपको हम बार-बार बता रहे हैं इस वीडियो में, कि अगर आपके साथ ये 5 साल पहले हुई थी चीज़ और उसके बाद आप वहाँ से भाग निकले, आप उनकी गिरफ्त से, उनके जाल से छूट के आपने अपनी एक ज़िंदगी जीनी शुरू कर दी। वो 5 साल पहले या 10 साल पहले हुई चीज़ भी आपके टी वीज़ा का आधार बन सकती है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अगर बोलें कि मेरे पास तो कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं है, जब ये सब कुछ हुआ था, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि आपका वो जो तो स्टेटमेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसीलिए, और आपका सच बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर आपका ट्रैफ़िकर के साथ में कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, हो सकता है आपके पास उनका फ़ोन नंबर भी ना हो सकता है कि आपकी उनसे बातचीत ही आखिरी 5 साल पहले हुई हो जब आपने वहाँ से नौकरी छोड़ी हो। और ये सब कुछ वाज़िब बातें हैं, इसके बारे में आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। या फिर आखिरी चीज़ है कि हो सकता है कि वो ट्रैफ़िकर आपकी ज़िंदगी अभी भी कंट्रोल कर रहा हो किसी तरह से। मान लीजिए आपने बहुत बड़ा पैसा लिया था और अभी भी वो आपने उसको नहीं दिया है, तो आप उसके किसी न किसी तरह से गिरफ्त में हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये सारे मामलात आप हमारे ऊपर छोड़ दें, हमारी टीम से आप बात कीजिए और उसके आधार पर आपका टी वीज़ा ज़रूर फ़ाइल किया जा सकता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, हम आपको सारी चीज़ें यहाँ इसलिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ गाइडलाइंस हैं, जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन हर मामला अलग होता है और उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे जुड़े होते हैं, वो आपसे हम कंसल्टेशन के दौरान पूछते हैं। Thank you so much, Somya ji, for reminding us in conclusion that all of these things that you have heard from us in our videos are guidelines, and that if anyone has questions about their immigration status or specifically about T visas, that they should please contact an attorney and book a consultation. And we are from Helen Terakich Law. Our website is www.terakichlaw.com. We're located in Wilmington, North Carolina, and our phone number is 910-509-7145. Thank you, everyone, and have a good day. Thank you, Debaji. This video is property of Helen Terakich Law, PLLC, copyright 2024 or 2025. This video may not be posted anywhere except by Helen Terakich Law or with written permission of Helen Terakich Law. Each immigration case is unique. This video is for general informational purposes only and should not be taken as legal advice for a particular situation. Please consult an attorney to learn more about your options for immigration. The intended viewers of this presentation are current clients of Helen Terakich Law, potential or future clients, or others wanting to learn more about immigration remedies. ये वीडियो हेलन टारोकीच लॉ पीएलएलसी द्वारा बनाया गया है, जिसके सर्वाधिकार सुरक्षित है 2024 या 2025 में। ये वीडियो एचटी लॉ की लिखित अनुमति के बिना कहीं पोस्ट नहीं किया जा सकता। हर इमिग्रेशन केस अपने आप में अलग होता है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एक उपयोगी जानकारी के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह से आप इसको अपने केस में लीगल एडवाइस या आपकी परिस्थिति में लीगल एडवाइस के तौर पर नहीं ले सकते। आपके केस के